Students, today we are going to start our next chapter, that is D and F block elements. The name of the chapter is D and F block elements. So first of all, understand what are D block elements and what are F block elements. So the elements in which last electron enters into D subshell are known as D block elements, while the elements in which last electron enters into F subshell are known as F block elements. So here D block elements, these are the elements in which last electron enters into D subshell. ऐसे elements जिनके केस में last electron enter करता है D subshell में, इन elements को क्या बोलते हैं? D block elements. Another term which is there among the D block elements, transition elements. So transition elements are those elements which have incompletely filled D subshell or partially filled D subshell. ऐसे elements जिनके केस में partially filled होता है या फिर incompletely filled D subshell होता है, those elements are known as transition elements. So I think these two definitions must be clear. D block elements तो ऐसे elements थे जिनमें last electron कहाँ enter करता है? D subshell में. While transition elements ऐसे elements हैं जिनके केस में क्या present है? Incompletely और partially filled D subshell जो है वो present है. Then another thing is all the transition elements are D block elements. All the transition elements are what? D block elements. But all D block elements are not transition elements. So, see, the necessary condition for the transition elements is that there should be incompletely filled D subshell. Transition elements के केस में क्या होना चाहिए? Incompletely filled D subshell होना चाहिए. अब ऐसे elements जिनके केस में completely filled D subshell है, ये हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करें तो वहां पे आएगा. जैसे आपके पास आ जाता है जिंक आ गया, कैडमियम आ गया, मरकरी आ गया, ठीक है. सो दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these are not transition elements. And why these are not transition elements? Because they have completely filled D subshell. इनके केस में completely filled D subshell होता है, that is why these are not regarded as a transition elements. अब अगर हम D block elements की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास आ जाता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो हर जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट की जो भी सीरीज होगी, हर सीरीज में कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं और हर d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ये तो आ गई आपके पास फर्स्ट सीरीज. इसी तरह से सेकंड सीरीज है, थर्ड सीरीज है, थर्ड सीरीज है एलिमेंट्स की. सो सारी की सारी सीरीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो यहां से आपको क्लियर हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं. ऐसे एलिमेंट्स जिनके केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें? डी सबसेट. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज कंसर्न. डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns0 to 2, n-1, d1 to 10. So the last electron will enter into D subshell. अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास स्टार्ट होती है स्कैंडियम से. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21. स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, copper and then zinc. Atomic number of scandium is 21, titanium 22, vanadium 23, chromium 24, manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29 and zinc 30. So if we talk about the electronic configuration of these elements, then in case of scandium, the electronic configuration will be
NS2। अब आर्गन तक तो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। देयर आफ्टर 4s2 and 3d1, this will be the electronic configuration of a scandium. Similarly you can write the electronic configuration of titanium, vanadium, chromium, मैग्नीज। सो टाइटेनियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3d में अब कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देन आर्गन 18, 4s2, 3d3। क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है 24, सो 24 है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, आर्गन 18, 4s2, 3d4। सॉरी, क्रोमियम के केस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो क्रोमियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा 4s1, 3d5। ये एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम के केस में एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम के केस में जो है कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो वो प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व होती है किसके केस में, क्रोमियम के केस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। आगे मैग्नीज है, आर्गन 18, 4s2, 3d5। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास ये 21, 22, 23, 24, 25। अब जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अब 26, 27, 28, 29 एंड 30। 26 पे कौन सा एलिमेंट है, आयरन। 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकल, 29 पे कॉपर एंड 30 पे जिंक। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, सो आयरन के केस में आ जाएगा आर्गन 18, 4s2, 3d6। ये तो कॉमन रहेगा सबके केस में। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 4s2 एंड 3d7, 4s2, 3d8, 4s2 नॉट 4s2, 4s1, 3d10। कॉपर के केस में अभी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जिस्ट करती है 4s1, 3d10। और जिंक के केस में बात करें तो जिंक के केस में आ जाएगा आर्गन 18, 4s2, 3d10। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और अगर किसी को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को रिमेम्बर करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एक निमोनिक्स जो है वो मैंने बना रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। निमोनिक्स हिंदी में सिंपली आप उसको रिमेम्बर कर सकते हो। शक्ति बनकर मैंने फिर कोई नया काम अंजाम दिया। शक्ति स्कैंडियम टाइटेनियम, बनकर वैनेडियम क्रोमियम, मैंने मैग्नीज, फिर आयरन, कोई कोबाल्ट, नया निकल, काम कॉपर, अंजाम दिया जिंक। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप जो है रिमेम्बर कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इजिली हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। एक है क्रोमियम के केस में जिसका एटॉमिक नंबर है 24, इसके केस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29, इसमें आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। सिमिलरली यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसी तरह से आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए भी, या इनके केस में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो लिख सकते हो। So students, first characteristic is atomic size, and as per the general trend it should decrease along the period. As we will move left to right, the atomic size should decrease. Atomic size क्या करना चाहिए, decrease करना चाहिए, and the reason behind this is increase in nuclear charge. Due to increase in nuclear charge, the electrostatic force of attraction will become stronger, consequently the atomic size will decrease. But जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके केस में ऐसा नहीं होगा। इनके केस में जो है वो एब्रप्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो आपको इरेगुलर बिहेवियर जो वो ऑब्जर्व होगा। एंड दिस इरेगुलर ट्रेंड यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास, जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से
वेनेडियम की तरफ अगर जा रहे हैं तब तो जनरल ट्रेंड ओबे हो रहा है, मींस एटॉमिक साइज कैसे वेरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद वेनेडियम से क्रोमियम या क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो ऑब्जर्व हो सकता है, इंक्रीज जो है वो ऑब्जर्व हो सकता है, देन आगे जो है वो डिक्रीज ऑब्जर्व हो सकता है। सो इसका रीजन जो है, इसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस्ड बाय, increase in nuclear charge is balanced by, effect of increase in nuclear charge is counterbalanced by shielding effect. So due to shielding effect what will happen, the electrostatic force of attraction will become weaker. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी वो वीकर हो जाएगी, कंसिक्वेंटली एटॉमिक साइज जो वो क्या हो जाएगा, जो डिक्रीज होना चाहिए था वो डिक्रीज नहीं होगा, इट विल बिकम कांस्टेंट। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट बन जाएगा, जो एटॉमिक रेडिया है वो कांस्टेंट हो जाएगी। मींस जैसा डिक्रीज ऑब्जर्व होना चाहिए था वैसा डिक्रीज जो वो नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, कांस्टेंट जो वो हो जा रही है। ठीक है, सो ये कॉपर तक किस तरह से रहेगा, कॉपर से आगे जिंक की तरफ अगर मूव करते हैं तो क्या होगा, जिंक के केस में जो है वो कंसिक्वेंटली ज्यादा एटॉमिक साइज जो ऑब्जर्व होता है एज कंपेयर टू कॉपर। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, in case of zinc there is more number of electrons and due to electronic forces of repulsion zinc is having greater atomic size. So next characteristic is metallic character, and as far as d block elements are concerned, so all d block elements are hard metals except mercury, mercury को छोड़ के बाकी जो जितने भी d block elements हैं ये किस तरह के metals हैं, hard metals हैं। due to their low ionization energy, कम ionization energy होने की वजह से ये क्या है, hard metals है। and there exist compact structure, close packing इनके केस में जो है वो exist करती है, strong metal metal bonding जो वो exist करती है, and that is why they have high enthalpy of atomization. Now if a question is like this, why transition elements have high enthalpy of atomization, the reason is there exists a strong metal metal bonding। जो भी transition elements है इनके केस में क्या exist करेगी, strong metal metal bonding जो है वो exist करेगी, closely packed tightly packed structure जो वो exist करेगा, and that is why they will have high enthalpy of atomization। अगर इनके compact structure की बात करें तो इनके केस में जो वॉइड होंगे, जो स्पेस होंगे, एम्प्टी स्पेस होंगे बहुत ही कम होंगे। इस तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो वो एग्जिस्ट करेगा, टाइटली पैक्ड जो है एटम्स जो वो एग्जिस्ट करेंगे, और एक मेटल का एटम जब वो दूसरे मेटल के एटम के, उसी मेटल के दूसरे एटम के क्लोज प्रोक्सिमिटी में जो वो लाई करेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज व्हाट, मेटल मेटल बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड। सो स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होने की वजह से इनके केस में क्या होगा, अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी ज्यादा होगा, और हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मींस इनको अगर एटम में कन्वर्ट करना है, जैसे हमारे पास अगर इनको जो भी अगर हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल है, अगर उसको अगर हमने मेटल के एटम्स में ब्रेक करना है तो इसके केस में क्या रिक्वायर्ड है, हाई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। सो हियर वी कैन से दैट द transition elements or these d block elements have high enthalpy of atomization and these are strongly metallic in metals। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड अगर हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। It will the general characteristic of a D block elements, but among the D block elements melting and boiling point जो वो कैसे वेरी करेगा, तो अगर हम इसको स्टडी करें तो D block elements के केस में क्या होगा, पहले जो है जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे वेरी करेगा, वो भी इंक्रीज करता जाएगा। बट when number of unpaired electrons are maximum then the melting point and boiling point will also be maximum। अब इसके बाद जैसे पेयरिंग स्टार्ट होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो वेरिएशन किस तरह से आएगी, जैसे यहाँ पे लो है, अगला एलिमेंट है इंक्रीज करता जाएगा, अगला एलिमेंट है इंक्रीज करता जाएगा, फिर जब मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैक्सिमम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगी तो ये डिक्रीज करना जो है वो स्टार्ट कर देगा, इस तरह से डिक्रीज करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की तरफ गए हम। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर पेयरिंग स्टार्ट हो रही है तो पेयरिंग के बाद क्या होगा, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन जब इस तरह से होगी। अगर और एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करें, जैसे एल्कली मेटल्स हैं उनके साथ अगर कंपैरिजन करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हार्ड मेटल्स है, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से इनके केस में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। So students, next characteristic is ionization energy, and we have already studied what is ionization energy, the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. See, अगर हम d block elements की general electronic configuration की बात करें तो d block elements will have general electronic configuration ns1 to 2 n-1 d 1 to 10। ठीक है, ns1 to 2 ns और n-1 d 1 to 10। ठीक है, n से जो d सब शेल होगा यहाँ पे, d सब शेल जो 1s वाला होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4s है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 3d आएगा। ठीक है, 1s वाला जो एग्जिस्ट करेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns1 to 2 n-1 d 1 to 10। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, सबसे पहले जो ns है इसमें से रिमूव होगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है स्कैंडियम का एग्जांपल, तो स्कैंडियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज आर्गन तक आगे इलेक्ट्रॉन 18, उसके बाद आ जाता है 4s2 20 एंड 21। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो वो 4s में एंटर कर रहा है, और साइमल्टेनियसली अगर रिमूव करना तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो वो किस में से निकलेगा, 4s में से निकलेगा, क्योंकि 4s जो वो आउटर मोस्ट सबशेल है। ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो वेरी कैसे करेगी, ठीक है, अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, इट शुड इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, इट शुड इंक्रीज। सो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, अब जब मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड बता रहा था कि लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे वेरी करनी चाहिए, इट शुड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है दैट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय व्हाट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो हमने एक इफेक्ट और देखा एटॉमिक साइज में भी देखा कि एटॉमिक साइज उस तरह से जो वेरी नहीं कर रहा है, इट शुड डिक्रीज, बट वो उतना डिक्रीज नहीं हो रहा है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो क्या हो रही है, वो कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी के केस में अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे इरेगुलर बिहेवियर जो वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इरेगुलर ट्रेंड्स जो वो ऑब्जर्व होंगे। एंड अगर हम यहां पे बात करें तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, जैसे क्रोमियम है, तो क्रोमियम के केस में एटॉमिक नंबर है 24 और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आर्गन 18, 4s1 3d 5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी आ जाएगी, क्रोमियम की आ जाएगी। तो यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए, किस तरह के ऑर्बिटल्स आ गए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए। तो इसके केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो इरेगुलर ट्रेंड जो वो ऑब्जर्व होते हैं किसमें, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में अगेन एक और कैरेक्टरिस्टिक जो हमें इसके केस में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी इसके केस में कोई फिक्स नहीं होगी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनके केस में होगी। जैसे एल्कली मेटल्स के केस हम बोल रहे थे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स दे कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। In case of alkaline earth metals, they can show +2 oxidation state. That was fixed to them. But in case of d block elements, oxidation state is not fixed. They do not have fixed oxidation state. इनके केस में जो oxidation state है वो fixed नहीं होगी. So here I am writing d block elements can show variable oxidation state. Variable oxidation state. You all are aware how to find out oxidation state.
So here I am taking the example of one element, that is manganese. So MnO, MnO2 or MnCl2, KMnO4, K2MnO4, ठीक है। सो ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, मैग्नीज के कंपाउंड्स है, तो इनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो यहां पे क्या बन जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +2। सो हियर मैग्नीज इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, MnO2। MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है, मैग्नीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा आपके पास x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे x इज इक्वल टू +4। सो हियर मैग्नीज इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट and in this compound magnesium is present in +2 oxidation state. In case of KMnO4 we have to find out the oxidation state of manganese. So potassium के ऊपर चार्ज +1, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम कर ले, +4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, कितना आ जाएगा 4 2 8, माइनस का 8 प्लस का 1 -7, x -7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई +7। इसी तरह से K2MnO4 है, K2MnO4 की अगर बात करें तो 2 + x + 4 इंटू -2। सो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करेंगे x -6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई +6। सो हियर मैग्नीज इज प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो मैग्नीज यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +7 +6, तो एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एक सिंगल फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इनके केस में नहीं होगी, दे कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बाकी और जो इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में वैसे ट्रेंड, जनरल ट्रेंड जो वो नहीं होंगे, जैसे हम दूसरे एलिमेंट्स के केस में इजीली एक्सप्लेन कर देते थे कि टॉप टू बॉटम ऐसे वेरी कर रही है प्रॉपर्टी, लेफ्ट टू राइट जो वो ऐसे वेरी कर रही है, मींस इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। irregular behavior, maximum irregular behavior is shown by these d block elements। so, जितने भी d block elements हैं मैक्सिमम जनरल ट्रेंड से कहीं ना कहीं डेविएट करता है और उसमें बहुत सारे रीजन बन जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट उतना ज्यादा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, सो उसकी वजह से जनरल ट्रेंड से ये क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। इन केस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स देयर में बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग जैसे स्टार्ट होगी तो पेयरिंग की वजह से क्या हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन जो दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, सो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो वो क्या हो जाती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हमने डिस्कस कर लिया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन का आ जाता है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।